Good morning, students. Welcome to the online classes of SGOI. Students, in my previous class, I discussed the chapter polynomial and their factors. Today, I will continue this chapter. Okay? Today we will learn about the factors. Okay? What is factorization and what is factor? Now, firstly, what is factors? Students, in numbers we know that if we write 12 is equals to 4 into 3 or 2 into 2 into 3. Okay? Then we know that 4 and 3 are the factors of 12 and 2 is also the factor of 12. Okay? Similarly, if we have a polynomial, okay, polynomial of degree 1, degree 2, degree 3 and so on, then firstly linear. What is linear polynomial? Okay, if we have a polynomial of degree 1, you all know that what is degree. Okay, degree is the highest power of the variable. Then if we have a polynomial of degree 1, then the equation is linear polynomial. For example, 2x plus 5. This is a polynomial or linear polynomial because here the value of power of x means variable is 1. Okay. Now student, the second is quadratic polynomial. Quadratic polynomial. If a polynomial having the degree 2, for example 2x square plus 6x plus 7. Okay, here the highest power of variable is 2, then this is quadratic polynomial. And in linear polynomial the highest power of variable is 1. Okay, now the cubic polynomial. In cubic polynomial, the highest power of polynomial of 3, 2x cube plus 7x square plus 6x minus 5. Here the highest power of variable is 3. This is cubic polynomial. Okay. Now the biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial is the highest power of variable is 4, then the polynomial is called biquadratic polynomial. Okay, now let's see what is factorization. Okay students, then what is factorization? Simply the process of writing an expression, means algebraic expression, polynomial, which are linear polynomial, quadratic, cubic and so on, in the form of terms or bracket multiplied together is called factorization. Each term and each bracket, okay, is called the factor of expression. Let's see the example. For example, we have any algebraic expression 5x square plus 15. Firstly, what do we do? Firstly, we find the highest common factor. Okay. Then here the common factor is 5. Okay. When we divide this first term by 5, we get x square plus when we divide 15 by 5, we get 3. Okay. Then in this case, we can say that 5 and x square plus 3 is the factors of 5x square plus 15, and this process is called factorization. Clear? There are many types of factorization method. The first is taking out the common factor. Okay, type 1 is by
taking out the common factors. Okay. Now let's see some question. Here 8x plus 12x. What will we do? Firstly, we find the common numbers. Okay. Common number means highest common factor. Here the highest common factor is 4. Okay. We take common 4. Here 2x plus 3y. We get 4 into 2x plus 3y. This is the factors of algebraic expression 8x plus 12. Okay. Now here we take common x square. After taking common x square, we get x plus 1. This is the answer. Now what will we do in this question? Firstly, we arrange this term mx minus my plus ny minus nx. Okay, we can arrange it. Now take common m. After taking common m, we get x minus y. Here we take common n. Okay, then y minus x. Now students, here this is x minus y and this is y minus x. Now we take common minus sign also. Then this change x minus y. Minus sign change into plus and plus sign change into minus. Why it is changed? Because we take common minus sign. Now take common x minus y with complete equation. From the complete equation we get m minus n. And this is the factors of the algebraic equation. We know that the factors are the grouped terms. Okay. Now similarly we arrange this. Here ax minus ay plus cx minus cy. Now after taking common a, x minus y plus c, x minus y. Then the answer is x minus y and a plus c. Okay. Now let's see this example. Here this is solved. Okay students, I hope you are clear. Now see some another question. The one which first question is question number 5 is p plus q whole cube plus p plus q whole of square plus p plus q. Okay. Now what will we do? We find out the common number. Here the common number is p plus q. Okay. Now after taking the common p plus q, we get, when we take common p plus q here, p plus q whole cube. Common means divide करना. जब हम इसे divide करेंगे, then we get p plus q whole of square. Okay, and p plus q plus 1. Okay. Now this is your final answer. Okay. Okay, students, the second type is type 2 is by forming the grouping. Okay. Factorize by grouping method. Okay. Grouping method. And the examples are this. Question number 3 and 4 are the example of grouping method. Okay. Here we form the groups. Okay. Now type 3 is by factorize the following terms by the difference of square
of two squares. Okay, let's see the examples here. In this case, we use the identity x square minus y square, which is x minus y and x plus y. Okay, you all know that the identity x square minus y square is equals to x minus y and x plus y. Let's see the example. Here the question is, minus 49. Factorize it. Then in this type of question we can write it in the form of 2x 4 square minus 7 square. Now use the identity. After using it we get 2x minus 7 and 2x plus 7. This is the final answer. Okay. Similarly, the next question is 5x square minus 80y square. Okay. The next question is 5x square minus 80y square. In this type of question, student, firstly we take common 5. After taking common 5x square minus 1, we get x square minus 16y square. Now we can write it 4y square. Clear? Now use the identity. It becomes x minus 4y and x plus 4y. Okay? This is the example of when the difference of two squares are squares. Now let's see the type 4 of question. Students, type 4 is by splitting. Type 4 is by splitting the middle term. Middle term. Okay. Now students, if we have any quadratic equation, for example ax square plus bx plus c. Okay. If we have any quadratic equation ax square plus bx plus c, you all know why it is quadratic equation? Because here the power of variable is 2. Okay. Now in this type of equation we split the middle term in two terms. Okay, such that the sum and the difference of these two terms is equal to the b, means middle term, and the multiplication of these two terms is equal to multiplication of a into c. Okay. Now let's see one example. Okay. The first example is x square plus 5x plus c. Okay. Then what we will do? Firstly, split the middle term. Okay. We can write this term is equals to 3x plus 2x. Okay. Check. The 3x plus 2x is 5x and 3x into 2x is equals to 6x square, and which is the multiplication of 6x square. Okay. Then we factorize it, and we can write 3x plus 2x plus 6. Now after taking the common x plus 3, and here we take common 2, x plus 3. Then the answer is x plus 3 and x plus 2. Okay, this is the answer of x plus 3 and this is the answer of the quadratic equation. Let's see the next example.
if we have x square plus 5x minus 6. Okay, same as this, but here the sign is changed. Then now the equation become 6x minus x. See the difference here, we change 5x is 3x plus 2x. But in this case we change 5x in the form of 6x minus x. Why? Because when we add it, we get 5x, and when we multiply it, we get minus 6x square. When we multiply it, we get minus 6x square. Here the plus 6x square. That's why we change in the form of 6x minus x. Now after taking common x, we get x plus 6, and here we take common minus 1, x plus 6. Now take common x plus 6 and x minus 1. This is the final answer. Okay? Okay students, let's see the next questions. 8x plus 2 whole of square 2. In this type of questions, what will we do? We let x plus 2 is equals to a. Okay, now put the value of x plus 2 is equal, the equation become 8a square plus 2a minus 15. Okay, now this become a quadratic equation. Then what will we do? We split the middle term b, means 2. Then 8x square we can write is 12a minus 10 minus 15. Okay, 12 minus 10 is plus 2, and 12 into 10 is 120, which is equal to 15 into 8, which is also 120. Okay, now take the common 4a, then 2a plus 3. Here we take common minus 5, this is 2a plus 3. Now after taking common 2a plus 3, the answer is 2a plus 3, 4a minus 5. Okay, let's see the question. In this type of question, we let x square is equals to a. Okay, then it become a. We can write it. We can write x raised to 4 is equals to x square whole of square, and the value of x square is a. Then equation become a square plus 3a minus 28. Now factorize it. 7 into 4 is 28. Then plus 7a minus 4a minus 28. Now after taking common a plus 7. Here we take common minus 4, a plus 7. Then a plus 7 and a minus 4 is the final answer. But this is not the final answer. We can put the value of a. Okay, never leave the answer in this form. Now putting the value of a, which is x plus 2 plus 3 and 4, which is x plus 2 minus 5, and the final answer is 2x plus 2 2s are 4 plus 3 and 4x plus 8 minus 5. Now 2x plus 7 and 4x plus 3. This is the final answer. We put the value of a, then x square plus 7 and x square minus 4. Now students, here we factorize the term x square minus 4. Here we use the identity a square minus b square and x square plus 7, and it become x minus 2 and x plus 2. This is the final answer. Okay. Now, okay students, that's all for today.
we will discuss some next type of factorization, some different type of factorization in my next class. Now practice the questions of your exercise of your book. Thank you so much. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 9th में सब्जेक्ट हिंदी में संत कबीरदास जी की व्याख्या चल रही थी बच्चों। पिछले 2 वीडियो में मैंने संत कबीरदास जी की व्याख्या को पढ़ा। अब आज तीसरा वीडियो है संत कबीरदास जी की। ये दोहा जो शीर्षक है साखी, उसको मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए, दोहा नंबर कितना है? 11। 10 तक पढ़ा दिया था, 11 में देखिए। कबीरा कहा करबियो ऊंचे देख आवास। आवास माने क्या होता है? घर, मकान, महल। काली करे गए लोग करना ऊपर जाने। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्यों को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तो अपने ऊंचे ऊंचे महलों को देखकर, अपने ऊंचे ऊंचे आवास को देखकर क्यों घमंड करता है, क्यों गर्व करता है? कार्य पर भय उठना। कुछ समय के बाद तुझे इस संसार से विदा लेनी होगी, तब तो तुझे जमीन पर लिखना पड़ेगा और तेरे पूर्वाभास। कवि का भाव है कि हमें अपने रुपया, पैसा, धन संपत्ति को देखकर, बड़े बड़े महलों मकानों को देखकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब नश्वर है, नाशवान है। केवल प्रभु का नाम ही एक सच्चा है। से देखें, कबीरा कहा करबियो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, सावधान करते हुए कहते हैं कि तुम अपने ऊंचे ऊंचे महलों को देख करके तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्य पर भय उठना, क्योंकि कुछ समय के पश्चात तुम्हें इस संसार से विदा होना होगा और तब तुम्हें भूमि पर गिरना होगा और तुम्हारे ऊपर घास होगी। 12वें नंबर का दोहा देखिए, यह ऐसा संसार है जैसा सैंडल। कबीरदास जी कहते हैं, यह ऐसा संसार है कि ये संसार देखने में बहुत आकर्षक लगता है, ये संसार देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन कैसा है? जैसा सैंडल फूल। यह संसार सैंडल के फूल के समान। सैंडल का जो फूल होता है बच्चों, वो देखने में तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं। उसी तरह ये संसार देखने में बहुत सुंदर है, बड़ा आकर्षक है, मन को मोह लेने वाला है, लेकिन वो सब क्या है? नश्वर। किसके समान? सैंडल के फूल के समान। देवदास के व्यवहार को झूठे नहीं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, उस समय के लिए सुख सुविधाओं को देख करके हैं अपने अहंकार को नहीं भूलना चाहिए। झूठे रंग न भूली, यानी इस सांसारिक वस्तुओं को देख करके हमें घमंड नहीं करना चाहिए। उसे देख लें, यह ऐसा संसार है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सैंडल के फूल के समान। जिस प्रकार सैंडल का फूल देखने में बहुत आकर्षक लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं, उसी प्रकार यह संसार भी क्या है? कुछ समय के लिए देखने में बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन ये जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हुए सब नाशवान है, सब नश्वर है, शीघ्र ही नष्ट होने वाली। इसलिए हमें झूठे सुखों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें झूठे सुखों
तेरहवें में इन्हीं अवसर चेत्या नहीं पशुओं पाली है। कबीरदास जी मनुष्यों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मानव, अगर तुमने इस अवसर को भी त्याग दिया, इस अवसर पर भी जागृत नहीं हुए और पशुओं की तरह अपनी देह पासे, जिस प्रकार पशु उसे सिर्फ खाने पीने से मतलब होता है और उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं, लेकिन एक मानव को हर चीज से मतलब, जैसे राम नाम जाड़िया नहीं अंत भरे। पिताजी कहते हैं कि पशुओं की तरह इस अवसर भी अगर तुम सचेत ना हुए और पशुओं की तरह अपनी देह को पालते रहे, राम नाम को नहीं जाना, राम के नाम को नहीं जाना, तो अंत समय जब तुम्हारी संसार से विदाई होती है तो तुम्हारे मुख में धूल मिट्टी ही जाती। सेम माने क्या है? धूल मिट्टी। चौदहवें में यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, लपका लागा खुद गया कछु ना आया। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो शरीर है वो कच्चे घड़े के समान, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है और हम इसको अपने साथ में लिए धक्का लगा फूट गया है और जरा सा धक्का लगने पर, जरा सा कष्ट होने पर ये फूट जाता है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। इसलिए हे मनुष्यों, तुम्हें ईश्वर का भजन करना चाहिए और इस संसार में जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वे सब नाशवान हैं, नश्वर हैं, सिर्फ परमात्मा का नाम ही अकेला श्रेष्ठ है। कबीर कहा करनियो देखी देख बीछड़िया मिलको नहीं ज्यों काजली होते। जिस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कहा करनियो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने सुंदर रूप रंग को देखकर घमंड मत कर, तू अपने सुंदर रूप रंग को देख करके घमंड मत कर। बीछड़िया मिलको नहीं ज्यों काजली, क्योंकि यह शरीर जिस पर तू घमंड करता है वो जब एक बार तुझसे अलग हो जाएगा, एक बार तुझसे बिछड़ जाएगा तो तुम्हें दोबारा नहीं मिलता। जिस प्रकार से सांप जब अपनी केंचुली एक बार छोड़ देता है तो उसे धरा नहीं। ये बात बच्चों ऐसे में सारे जगह आपको पढ़ा रही हूँ। कबीर कहा करनियो ऊंचे देख काय करे मैं लोग ऊपर जाने। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्यों को सचेत करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने ऊंचे ऊंचे आकाशों को, ऊंचे ऊंचे महलों को देख करके घमंड मत। काय करे भय लोग, कुछ समय के पश्चात जब उन्हें संसार से विदा लेनी होगी तब उन्हें जमीन पर लौटना होगा और तुम्हारे ऊपर घास जमी। कवि का भाव है कि इस संसार में जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वे सब नाशवान है, नश्वर है, परमात्मा का नाम ही श्रेष्ठ है। दूसरे में यह ऐसा संसार है जैसे सैमल, बिना दस के व्यवहार को झूठे नहीं। कबीरदास जी कहते हैं ये संसार कैसा है? सैमल के फूल के समान। जिस प्रकार सैमल का फूल देखने में अति सुंदर होता है, बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं। उसी प्रकार से इस संसार में भी कोई सुगंध बिना दस के व्यवहार को, यानी हे मनुष्य, तू कुछ समय के लिए अपने ये झूठे दिखाने से दूर, यानी इस झूठे रंगों में ना पड़, अर्थात परमात्मा की भक्ति में अपना मन। तेरहवें में देखिए, इन्हीं अवसर चेत्या नहीं पशुओं पाली। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस अवसर पर भी यदि सचेत न हुआ, तू यदि इस अवसर पर भी
से ये घड़ा जो है वो जरा सा धक्का लगने पर टूट जाता है, उसी प्रकार से मानव भी जरा से कष्टों में पड़ करके उसके अपने शरीर को नष्ट कर देता है। इसके बाद उसके हाथों में कुछ भी नहीं आता। कबीर कहा कर्मियों देही देह सुनो। कबीर जी कहते हैं, मनुष्यों को सचेत करते हुए कहते हैं कि हमें अपने सुंदर रूप रंग को देखकर कभी घमंड नहीं करना। बीच हरिया में वो नहीं जीव कांच की। जब ये एक बार मुझसे बिछड़ जाएगा तो ये दोबारा मिलता नहीं। जिस प्रकार से जीव कांच की जंग, जिस प्रकार से सब जब एक बार अपनी केंचुली छोड़ देता है तो वो दोबारा उसे दोबारा नहीं करता। कवि का भाव है कि हमें अपने सुंदर रूप रंग, धन संपत्ति, रुपया पैसा, महले तो महले ये देख करके कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि बीच हरिया में दो नहीं, ये जो शरीर है ये एक बार जब हमसे बिछड़ जाता है तो दोबारा नहीं मिलता है। जिस प्रकार से सांप जब अपनी केंचुली एक बार छोड़ देता है तो दोबारा उसे दोबारा नहीं करता। अब बच्चों, ये 11 से 15 तक ये दोहे मैंने आपको बताए। देखिए, आप उसमें हर एक दोहे में संकेत डालेंगे, एक संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साथी शीर्षक से उद्धृत किया है। इसके रचयिता भक्तिकाल की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक संत कबीर दत्त जी। अब बच्चों, पहले संकेत डालेंगे, इस दोहे का व्याख्या करने जा रहे हैं, फिर संदर्भ लिखेंगे, इसके बाद काव्य संदर्भ। अब इसमें देखिए बहुधा एक जैसा ही है। रस क्या है? शांत रस। छंद क्या है? दोहा छंद। अलंकार क्या है? अनुप्रास। अनुप्रास और रूपक। भाषा क्या है? सर्वोपरि। शैली क्या है? उपदेशात्मक। और गुण क्या है? लक्षण। शब्द शक्ति लक्षण। इस प्रकार से बच्चों आप प्रत्येक दोहे की व्याख्या करेंगे। पहले संकेत डालेंगे, फिर संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ आपको एक ही बार लिखना है और इसके बाद काव्य संदर्भ हर एक दोहे में करेंगे। ठीक है बच्चों, आज ये इतना समझ में आया। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। Hello students, welcome to online classes of Suvarna Yoga Institution. In my previous video, I had already started the third chapter of history named Forest Society and Colonialism. In my previous video, I had already explained you what are forest societies and what is colonialism. And I also explained what are deforestation, what is deforestation and what are the causes of deforestation. And now we will start from the categories. In my first topic, why deforestation, and the second topic, rise of commercial forestry. And now, I continue my second topic, rise of commercial forestry. जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से जब डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स को टेंशन होना स्टार्ट हुआ और उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट को इसलिए बुलाया ताकि वो यहाँ पर आके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ डिफॉरेस्टेशन को रोक सके। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने कुछ एक प्रॉपर सिस्टम बनाया, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जिनको ब्रेक करने के लिए उसने लोगों को पनिश करना स्टार्ट करने के लिए बोला। और उसने थर्ड एक और भी एडवाइस दिया। उसने वो एडवाइस दिया कि जो साइंस है कंजर्वेशन की, उसके लिए लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट किया जाए ताकि लोग कंजर्वेशन को लेके थोड़ा सा
से सीरियस हो और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में भी सोचे। इस तरीके से उसने क्या किया, जो फॉरेस्ट थे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट आर द रिजर्व कैटेगरीज, द रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड इज द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड इज विलेज फॉरेस्ट। इस तरीके से 3 कैटेगरीज डिवाइड करी। लेकिन क्या था, सभी के व्यूज बहुत डिफरेंट थे फॉरेस्ट को लेकर। जैसे कि जो विलेजर्स थे उनके लिए फॉरेस्ट का क्या यूज था, वो फॉरेस्ट को मानते थे फ्रूट्स, ट्यूबर्स, हर्ब्स, मेडिसिन और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के लिए ही फॉरेस्ट जरूरी होता है। उनके लिए फॉरेस्ट जो है सिर्फ इन कामों के लिए ही यूज होते हैं, क्योंकि वो उनकी लिवलीहुड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट जो फॉरेस्टर्स थे वो सोचते थे कि जो भी यूज है फॉरेस्ट का, वो शिप्स के लिए, हम शिप मेकिंग के लिए फॉरेस्ट से टिम्बर यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम रेलवे ट्रैक में सेट करने के लिए स्लीपर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। एंड फॉर द हार्ड टिम्बर जैसे साल, टीक, ये सारी चीजें हैं वो एक हार्ड टिम्बर के रूप में यूज होती हैं, जिन्हें वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंग्लैंड मिलना चाहते थे, क्योंकि वहां पर रोड रेज जो है वो बहुत कम हो गए थे। तो फॉरेस्टर्स के लिए ये सारी चीजें जरूरी थी। एक फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस उनके लिए बस इतनी ही थी। इसी के साथ साथ जब जो ब्रांडिस थी, जो उसने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट चलाया, उस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर उसने क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन थे जो उसने फॉरेस्ट के लिए स्टार्ट किए, और उनका वहाँ की जो लेवल थी, वहाँ की जो ट्राइबल्स थी, वहाँ की जो सोसाइटीज थी, उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ा। बहुत सारे इफेक्ट पड़े, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस। एंड नाउ द फर्स्ट, बैन ऑन द विलेजर्स फॉर, उसने सबसे पहले बैन कर दिया विलेजर्स के लिए फॉर फिशिंग, वुड कलेक्शन और फ्रूट्स, इन सब के लिए। मतलब उसने फिशिंग को बैन करा, वहाँ से जो लोग वुड को कलेक्ट करते थे उसको बैन किया, जो लोग वहाँ से फूड और सब चीज़ें ले जाते थे उन सब चीज़ों को उसने बैन कर दिया। इसके साथ साथ शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे हम स्लैश और बर्न जो है वो मेथड में बोलते हैं। और इसके साथ ही उसने हंटिंग को भी बैन किया। देखिए सारे रूल्स और रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट थे, हंटिंग को बैन किया। एंड नाउ सम कम्युनिटीज गेव अप। अब उसकी वजह से क्या हुआ, अब इफेक्ट क्या पड़ा, ये तो उसने रूल्स बनाए, इससे क्या हुआ, हाउ फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट द कल्टीवेशन, इससे वहाँ की कल्टीवेशन पे, वहाँ की सोसाइटीज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। सबसे पहले क्या हुआ कि बहुत सारी कम्युनिटीज थी, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को गिव अप कर दिया, क्योंकि उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन कल्टीवेशन ही था, फार्मिंग था। वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से ही, बर्न और स्लैश के मेथड से ही जो है वो कल्टीवेशन करते थे। जब उस पर बैन लग गया तो उनका जो एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था वो खत्म हो गया। ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और कुछ कम्युनिटीज, सम कम्युनिटीज गेट, बट इसके साथ साथ कुछ फायदे भी हुए। पॉजिटिव इफेक्ट में क्या आया कि जो कुछ कम्युनिटीज गेट न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी कम्युनिटीज को नए काम करने की अपॉर्चुनिटीज भी मिली। इसके साथ साथ लोकल जो पीपल थे उनकी ग्रेजिंग पर भी वहाँ पर बैन लगा दिया गया था। अब इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरह से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो पास हुआ उसमें कितने स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए वहाँ के लोकल पीपल्स के लिए, वहाँ की ट्राइबल्स के लिए, वहाँ की सोसाइटीज के लिए, जो कि मोस्टली तो निगेटिव बट कुछ पॉजिटिव इफेक्ट के साथ फिनिश हुआ। अब उससे प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई। जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं बहुत सारा हिस्ट्री में बार बार बता चुकी हूँ, रिबेल होता है। रिबेल का मतलब क्रांति, रिवॉल्ट, नाराजगी लोगों का, क्योंकि लोगों के ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन तक उससे इफेक्टेड हो रहे थे, तो जो है अगेंस्ट उनको होना पॉसिबल था। अब जब वो अगेंस्ट, तो हमारा थर्ड टॉपिक था रिबेलियन इन फॉरेस्ट। अब हम इसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से फॉरेस्ट में रिबेल स्टार्ट हुआ, रिबेल स्टार्ट हुआ, उसके लिए बहुत सारे लीडर्स। अब ये सिर्फ जो रिबेल स्टार्ट हुआ वो फॉरेस्ट का, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, नॉट इन इंडिया, इट वॉज स्टार्टेड इन होल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जगह जगह पर जहाँ जहाँ भी जो है वो कोलोनियलिज्म चल रहा था या किसी और वजह से, या फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट बनाने के लिए जो ये डिफॉरेस्टेशन चल रहा था, वहाँ के लोकल पीपल्स के साथ जो भी उनकी सब चीज़ों को बैन, शिफ्टिंग, हंटिंग, फिशिंग, इन सब पे जो बैन लग रहे थे, उसकी वजह से रिबेल स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए क्या था स्टार्ट रिबेल। मैंने अब देखिए जब कोई भी रिबेल स्टार्ट होता है तो उनमें बहुत सारे लीडर्स निकल कर सामने आते हैं। अब इंडिया में जब रिबेल हुआ तो छोटा नागपुर में जब रिबेल हुआ तो वहाँ पे बिरसा मुंडा एक ट्राइबल लीडर था, एक आदिवासी नेता था, जिसने कि वहाँ पर वहाँ के लोगों के लिए रिबेलियन स्टार्ट किया था और फिर वो सक्सेस भी हुआ था। इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू का नाम है, वो बहुत फेमस लीडर थे, जिन्होंने इस रिबेल के लीडर बने वो, और उससे भी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए सोसाइटी में।
एंड नाउ अब हम यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ वो हम बस्तर का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है और छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा जगह है बस्तर, जहाँ पर कौन कौन सी कम्युनिटीज रहती हैं। वहाँ पर मुरिया गोड वहाँ की कम्युनिटीज के नाम में है, मुरिया गोड, भद्रास एंड हलबास, ये वहाँ की कम्युनिटीज थी जो कि जो है फॉरेस्ट में रहती थी। वही उनका लिवलीहुड था, वही उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था और वहीं से ही वो अपनी सारी नीड्स को, अपनी सारी जो है ज़रूरतों को फुलफिल करते थे। तो हमने देखा बस्तर के बारे में। एंड नाउ टुडे इज माय टॉपिक इज फिनिश नाउ। तो आज हमने कैटेगरीज पढ़ी, इसके साथ साथ हमने पढ़ा विलेजर्स का और फॉरेस्टर्स का अलग अलग डिफरेंट व्यूज पढ़े जो कि उन्होंने फॉरेस्ट के बारे में अपने रखे। इसके साथ ही हमने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के कुछ रूल्स और रेगुलेशन पढ़े, किस तरीके से वो पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट डालते हैं वहाँ के लोगों के, वहाँ की सोसाइटी के ऊपर। और हमने फिर पढ़ा कि किस तरीके से बस्तर में एक रिवर स्टार्ट हुआ। इसको मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी अपने नेक्स्ट टॉपिक में कि बस्तर में किस तरीके से क्या कॉजेज थे रिवर के और किस तरीके से उनके ऊपर जो इफेक्ट था वो पड़ रहा था। इट इज़ ये मैं इसको जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। एंड लास्ट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।